International Society for Krishna Consciousness or ISKCON propagates Yuga Dharma of chanting of Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, introduced by Chaitanya Mahaprabhu at Mayapur near Kolkata 500 years ago. Furthering this cause, Srila Prabhupada established ISKCON in 1966 in New York, USA. A group of devotees led by His Grace Namanishta Das came to Mangalore to propagate the message of Srila Prabhupada. Mangalore being temple city, people are pious and God-fearing, have welcomed Krishna consciousness wholeheartedly. ISKCON Mangalore established worship of Sri Sri Radha Govind at Nantur. Since then, this temple has been the epicenter of spiritual activities in and around Mangalore. The center itself follows a strict routine of pujas and offerings to the deities, their lordship Sri Sri Radha Govind. Mangalore being an educational hub, youth from all over India throng this city, which opens a vast opportunity to educate them in ancient spiritual knowledge and inculcate in them Vedic values. Devotees from ISKCON Mangalore are traveling all the colleges, and the students are very much appreciative and are vastly benefited. ISKCON Radha Govind Temple Mangalore is organizing many youth festivals and spiritual pilgrimages. Thousands of Bhagavad Gita and other Vedic literatures are being distributed among the youth community. Radha Govind Temple has been organizing public festivals like Janmashtami, Gaura Purnima, Ramanavami, Narasimha Jayanti in large scale, where thousands of people participate and get benefited spiritually. Our beloved spiritual master Srila Prabhupada have left us with wonderful treasure in the form of his books. His books have transformed the life of millions of people around the world. These books are available in all languages of the world, and ISKCON today is the world's largest publisher of Vedic books. ISKCON Mangalore has been distributing these books to the public of Mangalore via door-to-door campaigns, stalls in temple festivals, and through Sankirtan van. Bhagavad Gita and Bhagavatam classes are being telecasted in local TV channels and are also available on YouTube. ISKCON Radha Govind Temple Mangalore welcomes you all to come and participate in various spiritual activities and be benefited. You are also invited to come and taste the spiritual atmosphere and interact with the devotees by staying in the temple premises for few days. Hare Krishna. To receive daily classes right on your mobile, please WhatsApp to 8383855114. You can also join video conference on weekends by contacting the above number. Our website www.iskonmangaluru.com. Hare Krishna. Satvena pratilabhyaiha Naishkarmena vipashita Namah Kaivalyanathaya Nirvana Sukha Samvide. The Supreme Personality of Godhead realized the pure devotee's act in transcendental existence of Bhakti Yoga. He is the bestower of uncontaminated happiness, the master of the transcendental world. Therefore, I offer my respects unto him. So, Bhakti is बहुत बड़ा चीज़ है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भक्ति का, इट इज़ नॉट मेटेरियल, इट इज़ स्पिरिचुअल. मेटेरियल वर्ल्ड में 3 मोड्स है. तमोगुण में के प्रभाव में जब हम आते हैं तो क्या लक्षण होते हैं? तो खुद को देखने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का. अभी कौन से मोड में है? तमोगुण के प्रभाव में आदमी को कोई नियम पालन करने का मन नहीं करता, बहुत आलस रहता है. ये तमोगुण के प्रभाव है. इससे तमोगुण में आदमी को शूद्र बोला जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता वो ना तो बिजनेस कर सकता है कुछ प्रैक्टिकली, ना वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है,
ना ही वो स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट आया, उसके ऊपर प्रकृति होती है जब आदमी नियम पालन कर पाता है और उसके शरीर से आलस निकल जाता है। अभी आदमी मेहनत करता है और वो आदमी धन कमाने के काबिल बन जाता है। वो इधर से कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, ये तीन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल बहुत लोग बिजनेसमैन अपने को वैश्य बोलते हैं। वैश्य का मतलब वो नहीं है। वैश्य का मतलब होता है कृषि को ऑर्गेनाइज करने का, खेती। गोरक्षा, गाय का रक्षा करने का। क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करता है, वैश्य गाय की रक्षा करता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, और इस चीज़ का धंधा करता है। तो आजकल लोग बिजनेसमैन है वो नहीं, स्ट्रिक्टली वैश्य मतलब कृषि और गोरक्षा का धंधा करता है। और कृषि और जैसे आपके नंद महाराज, वो किस चीज़ का धंधा कर रहे थे? किस चीज़ का? गाय के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, दही, घी, और कृषि और खेती, जो धान है आपके पास, उसका बिजनेस। उसमें भी वो लखपति करोड़पति थे। कृषि, उनके पास 9 लाख गाय थी, तो करोड़पति हो गया आदमी। और उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय, हाँ, थोड़ा आलस और निकल जाता है उसमें और वो रजोगुण में आ जाता है। और क्षत्रिय के लक्षण रहते हैं, वो क्या कहते हैं, सुरक्षा देता है। क्षत्रिय वो उसको, अगर किसी को भी कोई दर्द दिया तो उसको असहनीय हो जाता है। आपने किसी बेचारे को दर्द कैसे दे दिया, क्षत्रिय को गुस्सा आ जाता है। ये क्षत्रिय रजोगुण। और तीनों क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मण का आदर करते हैं। क्यों? ब्राह्मण का सिचुएशन अलग है। वैश्य को, शूद्र को सोने की इच्छा बहुत रहती है, वैश्य को धन कमाने की इच्छा बहुत रहती है, और क्षत्रिय को धन और शक्ति, 2 चीज़ चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के लक्षण अलग हैं। समादमा, तपाश, शौचम, शांति, मार्जम एवच, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावकम। ब्राह्मण मतलब उसको ज्ञान चाहिए, उसको मन और इंद्रियां उसकी कंट्रोल में। सो कलयुग में जनरली ब्राह्मण नहीं मिलते। थ्रेड बन के तो ब्राह्मण बनना बड़ा चीज़ नहीं है। ब्राह्मण मतलब सत्वगुण। सत्वगुण मतलब उसमें आलस नहीं है। सत्वगुण मतलब उसमें सारे नियम पालन करता है। सत्वगुण मतलब वो पैसे के और शक्ति, पावर के इच्छा से दूर है, उसको ये चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए वैदिक संस्कृति में एक पोस्ट है, सत्वगुण एक कॉन्शियसनेस है। जो आदि सत्वगुण को पहुंचता था, बिकॉज जीवन का लक्ष्य अंदर है, बाहर नहीं। आजकल लक्ष्य बाहर है लेकिन अंदर आदमी गिर गया है। लेकिन अंदर अगर चीज़ ठीक हो जाएगा तो बाहर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो द वैदिक कल्चर में कॉन्शियसनेस पे भी काम किया जाता था। आजकल खाली भौतिक वस्तुओं पे काम किया जाता है। आजकल कॉन्शियसनेस को है करके भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं लोग, ऐसे मूर्ख हैं। इस चीज़ को भी नहीं मानते कि देयर इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम बॉडी जो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को स्टेज ऑफ माइंड तो माना जाता है, लेकिन स्टेज ऑफ माइंड को कुछ केमिकल से ऑल्टर किया जा सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। ये जितनी भी ड्रग्स बनी है, बहुत सारी ड्रग्स साइकोलॉजिस्ट ने बनाई है। LSD तो साइकोलॉजिस्ट ने बनाई थी, क्योंकि उसने ऐसा सोच रहे थे कि कुछ केमिकल से आप कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन वो तो हेलुसिनेशन है ना, वो इट ओनली, आप बॉडी और माइंड के बीच में एक कनेक्शन तोड़ रहे हैं कुछ केमिकल से। आप एक्चुअली कॉन्शियसनेस को ऑल्टर नहीं कर रहे, बिकॉज कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करते हैं तो परमानेंट होता है वो। ये तो टेम्परेरी एक हेलुसिनेशन है, दारू पीने जैसा, जो 2 घंटे में ऐसे चला जाता है। ठीक है, सो देयर इज होल अप्रोच इज रॉन्ग। शरीर अलग है, शरीर इंक्लूडिंग ब्रेन अलग है, और मन अलग है, आत्मा अलग है। तो नेक्स्ट आदमी को ये समझ आता है कि कैसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि आई कैन कम टू अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को समझने के लिए कॉन्शियस जो है, तो वैदिक कल्चर में इसको मान के देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे दुखी आदमी रहता है शूद्र। शूद्र खुद भी दुखी रहता है, दूसरे को भी दुखी करता है।
शूद्र का मतलब ये बेमतलब में रोता रहता है, टैं टैं टैं, बेमतलब में। ये भी गलत है। वो दुखी रहता है हमेशा, उसको सुख नहीं है। उसका सुख है इंद्रिय भोग बिना नियम के। वैश्य थोड़ा खुश हो जाता है अभी, बिकॉज वो नियम पालन कर रहा है। ब्राह्मण को दक्षिणा भी देता है वैश्य, क्षत्रिय को अपना टैक्स भी देता है। पूरा वैदिक कल्चर में वैश्य ही समाज को चला रहा है, धन उसी के पास है। उसको किचन की तरह माना जाता है, या शरीर में पेट की तरह। क्षत्रिय और खुश होता है, उसको तमोगुण से तो पूरा मुक्त हो जाता है क्षत्रिय। वैश्य में थोड़ा तमोगुण रहता है, क्षत्रिय तमोगुण से टोटल मुक्त हो जाता है, और उसका मन और खुश हो जाता है। लेकिन असली खुशी ब्राह्मण के पास आती है, मेटेरियल, वो भी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सत्वगुण में है। तो जैसे आप अपना कॉन्शियसनेस इवॉल्व कर रहे हैं, आपका खुशी बढ़ रहा है, और ज़िंदगी तो खुशी के लिए तो है। तो ब्राह्मण पूर्ण रूप से खुश रहता था, क्योंकि उसको समादमा पूरी तरफ से मन का इंद्रियों का वश था। बहुत तपस्वी था। शौचम शुद्ध, ब्राह्मण मतलब शुद्ध। शांति, बहुत टॉलरेंट। समादमा तपा शौचम, शांति, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सरल। शांति, आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, उसको पूर्ण रूप से ज्ञान रहता था, विज्ञान दर्शन रहता था, ब्रह्म कर्म स्वभाव का। ब्राह्मण के 9 गुण। तो ब्राह्मण के ऐसा जीवन शुद्ध जीवन था, और यही बहुत बड़ा चीज़ है। एक्चुअली वैदिक कल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया को अभी हो सकता है, ये जानने के लिए कि सत्वगुण है, ऐसा एक स्टेज ऑफ कॉन्शियस है जो आदमी मेंटेन कर सकता है, जिसमें आदमी को खाली ज्ञान की इच्छा रहती है। इसके ऊपर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आता है। वो कितना मुश्किल है लोगों को जानने के लिए। सत्वगुण में आदमी काम करता है ड्यूटी के हिसाब से, रजोगुण में आदमी काम करता है पावर के लिए, वैश्य काम करता है धन के लिए, और शूद्र काम करता है सोने के लिए। इसलिए बोलते रहते हैं हमको अच्छे से सोना है। लेकिन भक्त काम करता है भगवान की खुशी के लिए। ये प्लेटफॉर्म अभी प्रदूषित है हमारा। ऐसा नहीं भगवान के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन लोअर मोड्स भी उसमें घुसे पिटे हुए हैं, तो आनंद नहीं आ रहा, अपने को ही लॉस हो रहा है। सवै पुंसा परो धर्मा यथा भक्ति अधोक्ष जय अहेतु की अप्रतिहता ये आत्म सुप्रसिद्धति। जब भगवान की सेवा होती है अहेतु की, उसका कोई कॉज नहीं है, मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ मेरे को ये मिलेगा, वो सेवा में आनंद नहीं आता। अप्रतिहता, वो रुकती नहीं है सेवा, कांस्टेंट 24 घंटे भगवान की सेवा के लिए आदमी इच्छुक रहता है। तो उसमें आदमी को शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। तो जब आदमी शुद्ध भक्ति में स्थापित हो जाता है, तो पहले हमने 6 लक्षण देखे आए थे, अभी 9 लक्षण प्रभुपाद जी बताते हैं। कैसे पता चलेगा कि शुद्ध भक्ति में हम स्थापित हो गए? शुरुआत में हमने 6 लक्षण देखे थे। क्या थे 6 लक्षण? कि आदमी को शांति मिल जाती है, बहुत शांत हो जाता है, हाँ, क्लेशाग्नि। और दूसरा, आदमी को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव शुरू होता है। उसको प्योर भक्ति के लक्षण है, उसको आध्यात्मिक आनंद, उसको भगवान पे मर्ज होने, सायुज्य मुक्ति की इच्छा निकल जाती है। उसको इतना आध्यात्मिक आनंद का इच्छा उत्पन्न होती है कि उसको ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मानंद का भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये जो भक्ति है बहुत रेयरली अचीव होती है। जब आदमी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, वो भगवान के भी प्रिय हो जाता है। ऐसे करके हमने 6 लक्षण देखे थे। लेकिन इसमें ये तो शुरुआत है, लेकिन जब आदमी भक्ति में स्थापित होता है, नेक्टिव डिवोशन बोलती है 9 लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं 9 लक्षण क्या है। अब प्योर भक्ति तो बोल देंगे, लेकिन क्या है लक्षण? पहला है शांति, वो ब्राह्मण का जो लक्षण था, फॉरबियरेंस, शांत, यस, वेरी नाइस। अव्यर्थ कालत्रम, एक भी क्षण बर्बाद नहीं कर सकता। अभी आदमी भक्ति में एडवांस कर रहा है। अव्यर्थ कालत्रम, वो अपना समय भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। उसको तुम इधर उधर ले जाओगे, उसको इंटरेस्ट नहीं है।
अव्यर्थ कालत्रम, मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कुछ मैं कृष्ण का सेवा कर सकता हूँ, अभी तो उम्र है, चलो, होता अव्यर्थ कालत्रम। विरक्ति, इंद्रिय भोग से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसको। मान शून्यता, उसमें अहंकार निकल जाता है। आशा, उसको एक होप आ जाती है दिल में, जरूर कृष्णा मेरे को स्वीकार करेंगे। आशा बंदा। समुत्कांता, समुत्कांता मतलब ईगरनेस, बहुत ईगरनेस डेवलप हो जाती है उसमें। नाम गाने सदा रुचि, उसको भगवान के नाम जप में बहुत रुचि। नाम गाने, भगवान के नाम को जप करना या उनके कीर्तन में उसको रुचि उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति, भगवान से अटैचमेंट डेवलप होने लगता है। किस चीज का? तद्गुणाख्याने, भगवान के गुण के बारे में सुनने का बहुत अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। प्रीति तद्वसते स्थले, जहाँ जहाँ भगवान की लीला है उसको वो जगह जाने का बहुत मन करता है। ओ भगवान की इधर ये लीला हुई थी, ओ भगवान की इधर ये लीला हुई थी। ठीक है, तो ये जो है सिम्टम्स हैं, दिस आर कॉल्ड अनुभवा, सबऑर्डिनेट साइंस ऑफ एक्सटैटिक इमोशन। ठीक है, तो ये किसके में डेवलप होते हैं? जिसमें भगवान में सीड ऑफ लव ऑफ गॉड अभी खुलना शुरू हुआ। भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। कोई भाग्यवान जीव है, उसको भक्ति लता बीज मिलता है, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है और उसके 6 लक्षण पता चल जाते हैं। इसको भक्ति लता बीज मिला नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जब ये बीज फ्रक्टिफाई होता है, कैसे फ्रक्टिफाई होता है? आपको बीज मिल गया और आपने बीज को जमीन में डाल दिया, तो बीज मिलने के भी लक्षण हमने डिस्कस कर लिया, वो भी आसान नहीं है। लेकिन जब ये बीज में आप श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, जब आप भगवान का नाम जप करते हो या भागवत पढ़ते हो, भगवान का सेवा करते हो, तो फिर ये बीज फ्रक्टिफाई होता है। श्री श्री राधा गोविंद की। तो फिर 9 लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या 9 लक्षण है? रिवाइज करो। सबसे पहले आदमी शांत हो जाता है। ठीक है, शांति, देन दया नहीं था इसमें, शांति, अव्यर्थ कालत्रम, वो एक क्षण बर्बाद नहीं करता। उसको बोलो ये करना है, इसमें भगवान की सेवा से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, मैं नहीं करूँगा। अव्यर्थ कालत्रम। हनुमान को बुलाओ, कुछ बोलो ये पत्थर इधर से उधर ले जाओ, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा। बोले क्यों? ये भगवान की सेवा से कुछ मतलब है क्या? नहीं, मैं नहीं करेगा। विरक्ति, इंद्रिय भोग से इंटरेस्ट ही नहीं रहता उसका। लोग क्यों काम करते हैं बहुत चीज़ों में, बहुत एक विरक्ति नहीं है, अभी इच्छा है। मान शून्यता, अहंकार नहीं रहता उसको। अहंकार तब आदमी के पास आता है जब इंद्रिय भोग की इच्छा उत्पन्न होती है दिल में, तब अहंकार आता है। बहुत प्राउड हो जाता, मैं इंद्रिय भोग कर सकता है, ठीक करते रहे। आशा, एक होप आ जाती है। आशा बंदा, प्रभुपाद जी बहुत बार इस चीज़ की बात है, आशा बंदा, एक होप, जरूर एक दिन भक्त बन जाएंगे, उसको होप आ जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आपको पढ़ाई अच्छी हो रही है, मैं पास हो जाएगा। जब नहीं पढ़ पा रहे हैं, पास कैसे हो गए कोर्स में, होप भी नहीं रहती, इसमें होप आती है, मैं पास हो जाएगा। अभी पास नहीं हुआ है लेकिन होप आ जाती है, समझ आ रहा है मेरे को, बिकॉज प्रकृति हो रही है, उसको आशा होता है मैं बनेगा जरूर, एक दिन भक्त बनेगा। अभी भक्त बने नहीं, हम सब वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं। वैष्णव तो बहुत की चीज़ है। हाँ, समुत्कांता, ईगरनेस। नाम गाने सदा रुचि, ये तो समझ आ गया। नाम गाने, हमेशा उसके भगवान के नाम जब की बहुत इच्छा रहती है। ठीक है। आशक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के गुण के बारे में सुनने बहुत उसको इच्छा रहती है। हमेशा जब भी टाइम मिलता है भगवान के गुणगान भागवत पढ़ता है, उसको इच्छा डेवलप हो जाती है। प्रीति तत्स्थले, और भगवान की जहाँ जहाँ लीला है उधर जाने की इच्छा होती है उसके। भगवान ओ इधर लीला किया था, मैं एक बार ही देखना चाहता हूँ। हाँ, तो उसको तीर्थ यात्रा के दिल में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बाकी चीज़ भी होती है 8। कुछ लोग में खाली 9वां, बाकी 8 नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। नाम गाने सदा रुचि नहीं है, शांति नहीं है, अव्यर्थ कालत्रम नहीं है, वो साल में तीर्थ यात्रा में जाने का। अच्छा है, तीर्थ यात्रा जाना बुरा नहीं है, लेकिन बाकी 8 भी उत्पन्न होना चाहिए, तब कंप्लीट है आदमी को। तो ये 9 लक्षण किसके हो गए? जिसका भक्ति का जो क्या है, उसको सीड को क्या बोलते हैं? बीज,
अभी फ्रक्टिफाई हो गया। ठीक है, तो जो भक्ति योग एक्चुअली बहुत बड़ा चीज़ है। इसका जो डिस्कशन शिल प्रभुपाद जी करते हैं नेक्टर डिवोशन, उन्होंने पूरा एक किताब इसके लिए लिखा है। ये किताब भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी के किताब से डेवलप हुआ है। और रूप गोस्वामी ने ये जो भक्ति का ज्ञान किससे लिया था? चैतन्य महाप्रभु से लिया था। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा इसमें विवरण है कि आदमी जैसा भक्ति में प्रगति करेगा ये लक्षण डेवलप होंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। International Society for Krishna Consciousness or ISKCON propagates Yuga Dharma of chanting of Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, introduced by Chaitanya Mahaprabhu at Mayapur near Kolkata 500 years ago. Furthering this cause, Srila Prabhupada established ISKCON in 1966 in New York, USA. A group of devotees led by His Grace Namanishta Das came to Mangalore to propagate the message of Srila Prabhupada. Mangalore being temple city, people are pious and God-fearing, have welcomed Krishna consciousness wholeheartedly. ISKCON Mangalore established worship of Sri Sri Radha Govind at Nantur. Since then, this temple has been the epicenter of spiritual activities in and around Mangalore. The center itself follows a strict routine of pujas and offerings to the deities, their lordship Sri Sri Radha Govind. Mangalore being an educational hub, youth from all over India throng this city, which opens a vast opportunity to educate them in ancient spiritual knowledge and inculcate in them Vedic values. Devotees from ISKCON Mangalore are traveling all the colleges, and the students are very much appreciative and are vastly benefited. ISKCON Radha Govind Temple Mangalore is organizing many youth festivals and spiritual pilgrimages. Thousands of Bhagavad Gita and other Vedic literatures are being distributed among the youth community. Radha Govind Temple has been organizing public festivals like Janmashtami, Gaura Purnima, Ramanavami, Narsimha Jayanti in large scale, where thousands of people participate and get benefited spiritually. Our beloved spiritual master Srila Prabhupada have left us with wonderful treasure in the form of his books. His books have transformed the life of millions of people around the world. These books are available in all languages of the world, and ISKCON today is the world's largest publisher of Vedic books. ISKCON Mangalore has been distributing these books to the public of Mangalore via door-to-door campaigns, stalls in temple festivals, and through Sankirtan van. Bhagavad Gita and Bhagavatam classes are being telecasted in local TV channels and are also available on YouTube. ISKCON Radha Govind Temple, Mangalore welcomes you all to come and participate in various spiritual activities and be benefited. You are also invited to come and taste the spiritual atmosphere and interact with the devotees by staying in the temple premises for few days. Hare Krishna. To receive daily classes right on your mobile, please WhatsApp to 8383855114. You can also join video conference on weekends by contacting the above number. Our website www.iskonmangaluru.com. Hare Krishna.